Assalamu alaikum dear students and welcome in class. I hope you all are fine. So today I am going to start lecture 20 of chapter number 3 biodiversity. So firstly I tell you the meaning of biodiversity again today, that bio mean life and diversity mean variety or spreading of living things. It means that in this chapter we will see that how many types or kinds of living things exist or spreading all over the earth. So dear students, today our topic is about importance of biodiversity. So 10 millions of, if we are talking about that 10 millions of kind of organisms are existing on the earth. 10 millions kinds of organisms अर्थ पर मौजूद हैं. इनमें से लेस देन 1/3 को स्टडी किया जा चुका है. बाकी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, वो अननोन थिंग्स हैं. एंड इफ़ वी टॉकिंग अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन, आज जितनी भी बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी लिविंग थिंग्स ज़मीन पर एग्जिस्ट करती हैं, वो 4 बिलियन ईयर्स अगो जो एवोल्यूशन हो रही थी उसके रिज़ल्ट में आज बायोडाइवर्सिटी अर्थ में मौजूद है. 600 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, 600 मिलियन ईयर्स पहले अगर चले जाएं तो सिर्फ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे. एंड ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लाइफ के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स मौजूद थे. सो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस डैट वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स for our benefits, like we are eating different animals and different vegetables and plants. Same like that, even animals also eat some other animals for eating purposes. And there are many significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources, like we are getting or we are preparing today different medicines from trees, from plants and from animals. Like we are today science or biologists or scientists are discovering new medicines, new drugs and different kinds of insulin and different from bacteria. A wide range of industrial material, for example building material, fiber, dyes, resins, gums, adhesives, rubber and oil are also directly derived from plants. Plants से भी different चीज़ें आती हैं and we are using these things for our benefits. Biodiversity play very important role in making and maintaining ecosystem. Similarly, biodiversity is directly involved in the recycling nutrients and providing fertile soil. Soil को भी अच्छा बनाती है. Now अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल. क्लासिफिकेशन जब की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की डिफरेंट ग्रुपिंग्स में, तो उसका एम्स और प्रिंसिपल क्या होते हैं. 2 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर, जिनमें से एनिमल्स और प्लांट्स हैं. जो मेन सबसे बड़े ग्रुप्स हैं डैट आर एनिमल्स एंड प्लांट्स. और 1.5 मिलियन एनिमल को स्टडी किया जा चुका है और 0.5 मिलियंस को प्लांट स्टडी किए जा चुके हैं. एंड अदर्स आर अननोन, बाकी अभी अननोन हैं. सो अगर हम बात करें टेक्सोनमी एंड सिस्टमेटिक्स की, टेक्सोनमी एंड सिस्टमेटिक्स दीज आर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. टेक्सोनमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे. सो this branch of biology deals with the classification of living organisms. This is called taxonomy. If we are talking about systematics, then इसमें classification की बात की जाएगी and साथ ही साथ traces the evolutionary history of organisms. organisms की classification की बात करेंगे और साथ ही साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे. तो इसे सिस्टमेटिक्स कहेंगे कि हम ये जानेंगे कि जो आज डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इनके एंसेस्टर्स क्या थे, कहाँ से ये स्टार्ट हुए, क्या चेंजिंग्स आई और इनका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इनकी जेनेटिक्स को, इनके एंसेस्टर्स को स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक. ये तो डिफरेंस है टेक्सोनमी और सिस्टमेटिक्स में. टेक्सोनमी में वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, but in systematics we will discuss classification along with the study of evolutionary history of organisms. So the main aim of both these two branches are to determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. Second one, to find the evolutionary relationships among different organisms. These are the two main aims of these two branches.
So now we will see the taxonomy hierarchy. What is taxonomy hierarchy? Taxonomy mean grouping, a series of ordered group of people or things within a system. Hierarchy कहते हैं एक सीरीज़, एक ग्रुपिंग तैयार कर देना डिफरेंट लिविंग थिंग्स की. इट मीन्स डैट के सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की. टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट किस्म के टेक्सास ग्रुप्स तैयार किए गए हैं और उन ग्रुप्स में लिविंग थिंग्स को अरेंज किया गया है. लाइक अगर हम बात करें ऑन बुक पेज नंबर 34 डैट फाइलम, ये ग्रुप है. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, दीज आर दी ऑर्डर्स, दीज आर दी ग्रुप्स इन विच लिविंग थिंग्स आर क्लासीफाइड. फाइलम जो है ये क्लास से रिलेटेड है और क्लास जो है ये ऑर्डर से, ऑर्डर फैमिली से एंड फैमिली जीनस एंड देन स्पीशीज़. अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. अगर हम यहाँ पे बात करें कि इफ़ यू वांट टू सी द टेक्सोनोमी हायरार्की ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम देखना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की जो ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से की गई है, किन किन ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है, और साथ ही साथ हम देखेंगे पी प्लांट को किस तरह से क्लासीफाई किया गया डिफरेंट टेक्सास में, ग्रुप्स में. टेक्सा मीन ग्रुप. हेयर वी हैव टू ग्रुप्स, ह्यूमन एंड पी प्लांट. सबसे पहले हम किंगडम देखेंगे कि ह्यूमन की किंगडम क्या है. ह्यूमन बीइंग्स आर बिलोंग फ्रॉम द एनिमल्स, सो देयर किंगडम इज़ नोन एज एनिमेलिया. P from plant, so its kingdom is plantae. Phylum, ह्यूमन बींग्स जो है कोडेटा हैं, एनिमल से बिलोंग करते हैं, सो इन्हें कोडेटा कहा जाता है. कोडेटा मीन वो एनिमल्स जो कि बैकबोन रखते हैं. सो अगर हम पी प्लांट की बात करें तो इसकी जो फाइलम है डेट इज़ कॉल्ड मैग्नोलोफाइटिया, मैग्नोलियोफाइटा. एंड क्लास की बात करें तो ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड मैमिलिया बिकॉज दे कैन गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स. एंड पी प्लांट क्लास इज़ मैग्नोलियोप्सिडा. ऑर्डर, ह्यूमन बींग्स प्राइमेट्स हैं, मीन सेंसिबल हैं, आला मखलूक हैं. पी जो है फेबेलस है. ऑर्डर फैमिली ह्यूमन बींग्स की होमिनिडे है एंड इसकी फेबिशिया है. एंड जीनस की बात करें होमो है, ह्यूमन बींग्स की मीन तमाम सेम होते हैं, एंड पी की पाइजम है. स्पीशीज़ की बात करें ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ होमो सेपियंस हैं एंड पी की पाइजम सेटिवम है. सो ये तो थे टेक्सा या क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमिक हायरार्की हमने पढ़ी है ह्यूमन बींग्स की और पी प्लांट की. ह्यूमन बींग्स का जो किंगडम है एनिमल है, पी प्लांट प्लांट का प्लांटे है. फाइलम कोडेटा है, इसका मैग्नोलियोफाइटा है. क्लास मैमिलिया है, मैग्नोलियोप्सिटा है. ऑर्डर प्राइमेट्स है, फेबेलस है. फैमिली होमिनिडे है, फेबिशिया है. इस तरह से जीनस जो है वो होमो है, होमो मीन सेम, एंड पाइजम है पी प्लांट्स की. एंड स्पीशीज़ की बात करें तो होमो सेपियंस मीन इंसान जो है वो अकल और शऊर रखने वाला है, और जो प्लांट है डेट इज़ पाइजम सेटिवम इसका स्पीशीज़ है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो टेक्सोनोमिक हायरार्की मींस के किस तरह से डिफरेंट किस्म के ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप्स में डिफरेंट किस्म के लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन and its aims and principles, on which aims living things have been classified, and what are the aims of classification. Today we discussed two branches of biology like taxonomy and systematics. In taxonomy we only discuss about the classification of living things, but in systematics we will discuss classification along with the evolutionary history. So next we will see about the taxonomic hierarchy. Taxonomy hierarchy means the systematic grouping or classification of living things. और इस तरह से डिफरेंट टेक्सा ग्रुप्स बनाए गए जिनमें ह्यूमन की हमने टेक्सोनोमी हायरार्की पढ़ी और पी प्लांट की. सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह.